Hello everyone, welcome to Apti Plus editorial analysis. So this video session is dedicated to the editorial analysis from the Hindu as well as from the Indian Express. So this is the initiative of Apti Plus and the entire initiative is powered by ISGAN. और we will be also discussing some of the important questions in this analysis. तो आप अंत तक बने रहें ताकि जो important questions हैं जो एग्जाम के लिए relevant है उसे भी हम डिस्कस करेंगे. और आप में से जो लोग हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ सिविल सर्विसेज 2020 के लिए इनरोल करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं. इसमें टोटल 70 टेस्ट है जिसमें 40 सेक्शनल टेस्ट, 12 करंट अफेयर टेस्ट, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 13 फुल लेंथ टेस्ट हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं. और इफ़ यू वांट टू आल्सो पार्टिसिपेट इन द आंसर राइटिंग चैलेंज तो एवरी डे वी यूज टू पोस्ट 3 क्वेश्चन और ISGAN वेबसाइट. तो आपको इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी. आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर एप्टी प्लस टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल वेर यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट PDFs relevant for the examination, all the compilation and the important notification related to the examination. So do not forget to subscribe the Apti Plus official telegram channel. And starting with the today's editorial analysis. So the first editorial talks about the jurisprudence of the judicial rubber stamp. See, this talks about how the unlawful prevention activities act that was being enacted by the government. So what are the essence of this? Basically it is more on the critic part, and definitely this can be important for your general studies paper 2 and paper 3. It dominates on paper 3 because it is more of the internal security perspective. So it talks ki what more UAP is required, because the declaration of anyone as a terrorist on an individual basis, because there is a counter argument also कि ये जो bill है, this not the satisfaction to declare anyone as a terrorist is not very much defined. ठीक है, तो it still create a place of ambiguity over there. तो इसमें ऑल्सो भी बताया गया कि what are the UAP requirement, what are the requirement that would be needed. Okay, because again the things that need to be taken care when you declare someone as a terrorist, as an individual or an entity. इसमें कुछ एग्जांपल दी गई है जैसे मोहम्मद या फिर जमात इस्लामी दावा जो है उसके बारे में. और जो रिसेंट UAPA का जो ट्राइब्यूनल है और जो ट्राइब्यूनल आई थी वो अगस्त 23 उन्होंने कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर जो है उसको बैन कर दिया है. ओके, so there are other concerns that has been raised in this entire editorial. It talks about the things that can be done. The government has refused to do any other submission with reference to this. Or Justice Chandrasekhar ne that have also reported that he has observed that the respondent association that has not led to the evidential substance to defense the office bearer. तो उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन है यहाँ पे, आप डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हैं. एंड ऑलरेडी वी हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन लॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट. तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रेफर दैट वीडियो, तो आपको थोड़ा वहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी. दिस इज मोर ऑन द क्रिटिक एंड दिस पॉइंट्स विच आर मेंशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग. ओके, now the second editorial which is there in the Hindu talks about the steamy back into the Indo-Pacific. See, इस editorial में basically बताया गया है कि कैसे Russia could play a emerging role, and Russia can play a big shaper, and Russia can reshape the region of the geopolitics when it's come to the Asia Pacific. So this also talks about the tussle between the India and China and the India and US. So definitely I mean, talking about the Russia, it can act as a neutralizer to both of the relationship. Definitely Russia एक ऐसी country है जिसको veto power भी मिला हुआ है. तो it talks about Mr. The things that was being there in the relationship between the India, China and US. So it can be neutralized when the interference of Russia is there. सो इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बात की है जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन की बात करें साउथ ईस्ट एशिया में, तो डेफिनेटली जो चाइना इज़ डोमिनेटिंग दिस रीजन. ठीक है, चाहे वो 1965 में इंदिरा गांधी के टाइम से आप बात करो या उस टाइम पे जो इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका एंड USSR था. सो डेफिनेटली वाज अ कॉमन फीचर दैट वाज बीइंग टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ चाइनीज इन दिस एरिया. सो दिस टॉक्स अबाउट कि हाउ द रशिया कैन प्ले अ पाइवटल रोल. एंड डेफिनेटली इसमें एक और थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में बात की गई है. डेफिनेटली क्वेश्चंस रिलेटेड टू मल्टीपोलर वर्ल्ड इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स कम टू जनरल स्टडीज पेपर 2 वेयर द इम्प्लीकेशन ऑफ रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज आर ऑल्सो कंसर्न. तो कुछ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स भी बताई गई हैं कि कैसे जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है और जो चाइना, दे आर ऑल दीज टू कंट्री आर ट्राइंग टू डोमिनेट ग्लोबली. ठीक है, तो साइनो रशियन रिलेशंस के बारे में भी डिस्कशन है यहाँ पे.
तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ सकते हो। कैसे एक एशिया पाइवोट के बारे में कि द मेन स्ट्रीम अमेरिकन पॉलिसी है वुड बी डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ बिग पावर, दैट इज यूएस, चाइना एंड रशिया। तो डेफिनेटली इंडिया उस चीज़ में अपनी कैसी डोमिनेंसी बना सकता है, दिस थिंग्स आर डिस्कस इन दिस एडिटोरियल. Now the second page of the editorial is like op-ed. Here it talks about the importance of conceptualization of the NRC. See, NRC issues कल भी न्यूज़ में थी और ये भी एक दो दिन और न्यूज़ में रहेगी, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट किया उसमें कई सारे लोग, लगभग 15 लाख लोग इज़ नॉट बीइंग इंक्लूडेड, राइट. तो इस प्रोसेस में पूरी बात की गई है कि कैसे व्हाट कुड बी द रीजन दैट वाज द मेथोडोलॉजिकली टारगेट किया गया पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ and the people who are the part of the Jammu, basically the Assam initiative. तो जो NRC 1950 की 1951 वाली जो इश्यूज़ है, सो दैट वाज आल्सो बीइंग डेल्ट. यहाँ पे चीज़ें ऑलमोस्ट रिपीटेड आपको मिलेगी, फाइन. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर पीपल आउटसाइड द आसाम, तो यहाँ पे ये भी बात की गई थी कल में भी, जो मैंने एडिटोरियल डिस्कस किया उसमें ये भी बातें हैं कि जो लोग अगर NRC में नहीं इंक्लूड हुए हैं और बांग्लादेश भी अगर उनको लेने से मना करता है, तो व्हाट विल हैपन टू दो पीपल, ठीक है. सो हाउ देयर राइट्स विल बी एक्टिवेटेड. और इसमें कुछ एक एग्जांपल दी गई है 1979 की, जब स्टेट ने अगेंस्ट एक प्रिवेंटिव थ्रेट उस तरह से सरकार के सामने आई थी. तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस गई है. एक कॉलोनियल रूट्स के बारे में बताया गया कि हाउ कॉलोनियल रूल स्टिच प्रेजेंस इन 1931 से बिटवीन द इनकजन द इमिग्रेंट्स फ्रॉम द असम एंड द पाकिस्तान, ओके, जो बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स थे उसके बारे में. और जो जब सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो है फेट ऑफ द एक्सक्लूडेड. सो आई थिंक दिस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ विच यू कैन रीड, कि व्हाट विल हैपन टू द पीपल हु हैव एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट, ओके. सो दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Now this other editorial which is there in the Hindu talks about putting accidental victim at the center, okay, at the center of the law. So ये जो मोटर लॉ वेल अमेंडमेंट एक्ट आई है उसके बारे में ये चीज़ें हैं. तो what I'll do, I'll be discussing this in the in depth, because I think this is again very important. This again can be important for your general studies paper 3, fine. यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुट इट्स हार्ड एफर्ट कि कैसे चीज़ों को वी कैन मेक इनटू द स्ट्रीमलाइन. बाकी इस एडिटोरियल में थोड़ी क्रिटिक है, तो वील सी कि क्या उसमें वी कैन इम्प्रूव ऑन दैट. नाउ द अदर शॉर्ट आर्टिकल विच इज देयर इन द हिंदू टॉक्स अबाउट द इंडियन क्लाइमेट चेंज, ओके, एंड द वनरेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट चेंज. तो एक HSBC 2008 की असेसमेंट आई है जहाँ पे उन्होंने बताया इंडिया बीइंग द कंट्री एंड वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज, ओके. और जहाँ तक बात करें साइंटिफिक वार्मिंग के जो कार्बन एमिशन है इज कंटिन्यूस टू राइज, जहाँ तक चाइना की, US की या इंडिया, these three country are among the biggest contributor when it's come to the carbon emission. So this is also it is a good one. I mean, for environment paper 3 in the environment section, definitely the content is very good, a short article which again can be relevant for examination, ठीक है. तो कुछ एक स्मॉल टेक्टिक, एक सेल्फ डिफेंसिंग टेक्टिक भी बताई गई है कि कैसे एक इंडेक्स के माध्यम से हम उस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, क्लाइमेट हजार्ड्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एंड बिल्डिंग रेजिलियंस, की हाउ वी कैन बिल्ड द रेजिलियंस एट द सेम टाइम. तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. दिस इज़ रिटन बाय this is written by Vinod Thomas, and he is basically a professor at, he's a visiting professor at Lee Kuan School of Public Policy at National University of Singapore. Okay, so you can definitely read this one. This is the important one. This was the entire glimpse from the Hindu. Now we'll be looking at the Indian Express. So the first editorial in the Indian Express talks about the bank and for the buck. So this is written by D. Subbarao. He was the previous RBI governor. He's a former RBI governor. He talks about how the question is not whether the public sector bank should be big or small. So it talks about whether public sector we should continue with the public sector bank or not. So here he has given some of the implication and the way forward of it. So this again can be important for your general studies paper 3, where economics section dominates this paper. So there it can be very helpful. Now the short article which is there, the title is Captain Cool. So this will not be contribute anywhere in the GS general studies paper. This talks about the Arun Jaitley and his working style. So Vinod Dhal has just has shown his personal experiences with Mr. Jaitley. So he has taught how the economic reform that he has taken and his way of performance when he was a Minister of Commerce. So he more or less he has personal experience उन्होंने बताया है editorial में, ठीक है. This is a short article. Now the other editorial which is there in the Indian Express talks about the teacher must have their day.
सो इसमें बताई गई है कि कैसे द एथिक्स ऑफ द टीचर्स, मतलब बेसिकली अगर आप कुछ टाइम पहले की बात करें, नो वेट बैक टू नो आई मीन द 90s, सो देयर वर सम एथिक्स दैट वाज बीइंग अटैच्ड विद द नो द डोमिनेंस कल्चर ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट वर डेफिनेटली more or less ethical. Nowadays everything is becoming the professional. Okay, so this also talks about, because today is Teachers Day, on the occasion of Teachers Day, so this has been written. So you can see the ethical dimension from here, and this again can be important for your general studies paper 4. Okay, now the escaping the Kashmir trap. So this is again on the background of the abrogation of article 370 and 35A. So in this particular article it talks about ki how Pakistan can redefine its definition for the nationalism. Okay, it defines it for the nationalism, and definitely the things are there ki if Pakistan, instead of taking that the abrogation is on hindrance to the Pakistan line of control or POK, it could again forecast a platform where it can shows ki definitely we are working towards the nationalism. So this is again on the continuation, same content would be there. If you find anything relevant for the examination, you can filter it out with your requirements. Now the short article again is there, is the no panacea. So this is this talks about the national bill regulator, the National Medical Commission bill, which was there, which has replaced the Medical Council of India. So in this particular editorial it talks about ki what other thing, this is not would be the complete panacea. Panacea मतलब कि it would be not the only solution. Fine. तो इसमें ये बताया गई है कि कैसे व्हाट अदर थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर, बिकॉज हमारे पास मेडिकल एजुकेशन में बेसिकली द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर की काफ़ी कमी है. नो टॉकिंग अबाउट द बॉटलनेक्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेसिक एमिनिटीज इन द हॉस्पिटल्स आर नॉट देयर. सो द एंटायर थिंग इज डिस्कस, एंड इस तरह की एडिटोरियल 2-3 बार रिपीट हो चुकी है न्यूज़पेपर में, एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ सेपरेट वीडियो. तो एक नेशनल मेडिकल कमीशन के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो आपको जिसमें भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो को देखना, सो दैट यू गेट द क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक. तो वी विल बी मूविंग टू आवर important article of the day, so that is putting accident victim at the center of the vehicles law. तो इसमें बताई गई है कि कैसे जो न्यू लॉ है इट पेनलाइज बेसिकली, जो ना इसमें इन्होंने क्रिटिक बताया कि इट फोकसेस मोर ऑन द कंपनसेशन, ओके, एंड पेनाल्टीज. ठीक है, पेनाल्टी से ज़्यादा ये बेसिकली इट फोकसेस मोर ऑन पेनाल्टी एंड देन कंपनसेशन, ये इनका कहना है, जो GS वाजपेयी एंड अनंत कौशिक हैं. तो बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल एंड द थिंग्स टू बी डन. सो पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो आर्टिकल है दैट टॉक्स अबाउट द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है, एंड दोज ऑफ यू राइटिंग द मेंस एग्जामिनेशन कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन दिस टाइम, और नहीं तो अगले साल एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है इस क्वेश्चन से. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है एग्जाम्स के लिए, एंड फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड विद रेफरेंस टू द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द बिल. नाउ एक बैकग्राउंड समझ लो कि इसमें क्या है, कि अगर मैं बात करूँ, इंडिया इज़ अमंग द मोस्ट एक्सीडेंट प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड. भारत अपने आप में एक बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन कंट्रीज़ है, और जो एक्सीडेंट डेथ है यहाँ पे ऑलमोस्ट नियरली 1,50,000 के ऑलमोस्ट है. ठीक है, तो ये एक काफ़ी अपने आप में एक बड़ा नंबर है, और जो 10% ऑफ द टोटल मोटर व्हीकल जो फैटेलिटीज़ है वर्ल्ड वाइड है. ओके, 10% काउंट करता है ये ऑलमोस्ट. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल पास किया है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019, इसकी कोशिश ये है कि एक एफिशिएंट, सेफ एंड करप्शन फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्री को मिले. ठीक है, तो दीज आर द मेन टैग लाइन्स और द पंच लाइन फॉर दिस bill, motor vehicle amendment bill. So this was the background. Now you need to understand what exactly is the motor vehicle amendment bill. देखो ये this was introduced by the Minister of Road Transport and Highway. नितिन गडकरी हैं अभी Minister of Road Railway and Transport, उन्होंने ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था. And the bill seeks to basically amend the Motor Vehicle Act 1988. तो दिस पॉइंट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स में आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो अमेंडमेंट हुई है वो कौन से एक्ट को अमेंड करती है. तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है, टू प्रोवाइड द रोड सेफ्टी. So this is the basic point. Now I'll be telling you the important provisions of this bill. So देखो जो compensation है, because जो compensation for the road accident victim है, that would be a cashless treatment. ठीक है, कोई कैश नहीं दिया जाएगा, it would be a cashless treatment to the victims.
कब? ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का मतलब होता है कि जब आपको 1 आवर ऑफ द ट्रॉमा इंजरी, जिस समय घटना घटी है उसके 1 घंटे के टाइम को हम गोल्डन आवर कहते हैं। तो उस टाइम पे वॉट एवर इज थिंग हैपनिंग, द एंटायर नो द ब्रोन द वॉट एवर ट्रीटमेंट इज बिंग टेकन केयर ऑफ, सो विल बी अ कैशलेस ट्रीटमेंट, द गवर्नमेंट विल बी फंडिंग दैट द एंटायर ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन। नाउ द स्कीम विल ऑल्सो प्रोवाइड एन एंट्रीम रिलीफ। तो जो क्लेमेंट्स हैं उनको एक एंट्रीम रिलीफ मिलेगा विद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर किसी की इंश्योरेंस है, किसी ने अगर हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, तो दे विल ऑल्सो गेट द कंपनसेशन। नाउ द बिल ऑल्सो इंक्रीज है, जो मिनिमम कंपनसेशन है तो उसको इंक्रीज किया गया है इन हिट एंड रन केसेस में। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो नो दिस अमाउंट गोज अप टू फ्रॉम 25,000 टू 2 लाख। पहले 25,000 रुपये थी, अब इसको 2 लाख रुपये कर दिया गया है। नाउ इन केस ऑफ ग्रीफ इंजरी, ठीक है, जब किसी ग्रीफ इंजरी है तो पहले जो अमाउंट थी वो 12,500 रुपये थी, नाउ इट हैज़ कम टू 50,000 रुपीज़। ओके, सो दीज नंबर्स इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि अमाउंट क्या है, बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें कितनी इंक्रीज हुई है, तो यू गेट अ फेमिलियरिटी अबाउट द फिगर, ये क्या फिगर है एक्चुअली में। ना कुछ कंपलसरी इंश्योरेंस हैं, जैसे बिल ऑल्सो रिक्वायर कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड कॉन्स्टिट्यूट करे। दिस अगेन कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड द कंपलसरी इंश्योरेंस कवर्स टू ऑल यूजर इन इंडिया। जितने भी भारतवर्ष में जितने भी लोग ड्राइव करें, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको एक कंपलसरी इंश्योरेंस देने की बात की गई है। फिर गुड स्मार्ट ट्रेन्स की बात की गई है। द बिल डिफाइंस की कौन से ऐसे लोग हैं, पर्सन, जो इमरजेंसी कंडीशंस में अगर किन्होंने कहीं पे देखा कि किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, तो दे एक्ट एज अ गुड स्मार्ट ट्रेन एंड दे विल डेफिनेटली असिस्ट देम टू टेक टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, अ सीन ऑफ द एक्सीडेंट में अगर कोई इस तरह के लोग हैं तो दिस वुड अगेन अ गुड एथिकल पार्ट ऑफ द सिटीजन एज वेल। नाउ अगर मैं बात करूँ रिकॉल ऑफ द व्हीकल्स, तो रिकॉल ऑफ द व्हीकल्स में बेसिकली इस प्रोविजन में क्या है कि बिल अलाउ करता है कि जो भी ऑर्डर टू रिकॉल द मोटर व्हीकल जो भी डिफेक्टेड है, अगर मान लो व्हीकल में भी डैमेज ड्यू टू कॉज ऑफ एनवायरमेंट और ड्राइवर या किसी अदर कॉजेज है, तो जो मैन्युफैक्चर है दैट विल बी कॉल्ड टू रिम्बर्स द बायर कॉस्ट। जो पूरा बायर का कॉस्ट है वो जो मैन्युफैक्चर है वो रिम्बर्स करेगा या तो रिप्लेस करेगा जो भी डिफेक्टिव पार्ट है, ठीक है, विद सिमिलर और बेटर स्पेसिफिकेशन। तो डेफिनेटली एक यहाँ पे देयर इज अ चेक एंड बैलेंसेस ऑन द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर एज वेल, बिकॉज दे वेर जस्ट मेकिंग, they were not taking their responsibility, they were just doing biased with the customers. So again वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी टाइट की गई है ऑन द मैन्युफैक्चर पार्ट। और अगर मैं बताऊँ जो नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, एक नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बनाई जाएगी जिसको हम NTP भी कहते हैं, NTP। तो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बनाई जाएगी विद कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और एक रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड बनेगी, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड का काम ये होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू काम करेगी एंड इट विल एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू द रोड सेफ्टी। बेसिकली जो रोड सेफ्टी है और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उनको संभालने का काम रोड सेफ्टी बोर्ड करेगी। बेसिकली इनका जो मेन काम है, द मेजर का वर्क वुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ मोटर व्हीकल, जो स्टैंडर्ड ऑफ मोटर व्हीकल है उसको देखना, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ द व्हीकल इज देयर और नॉट, दिस विल बी टेकन केयर ऑफ। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ द रोड सेफ्टी जो है दैट विल बी ऑल्सो चेक बाय दिस बोर्ड। एंड प्रमोशन ऑफ न्यू व्हीकल्स टेक्नोलॉजी, किस तरह से हम न्यू व्हीकल्स टेक्नोलॉजी प्रमोट कर सकते हैं, ओके। अभी जैसे आपने जो बायो डॉट्स का भी न्यूज़ पढ़ा होगा काफ़ी टाइम पहले, जिसमें ये बताई गई थी कि डॉट्स के मदद से कैसे अगर कोई गाड़ियाँ खो जाती है तो वी कैन रिकवर इट, बट अगेन इट इज़ नॉट दैट एक्टिव इन इंडिया। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी इस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। डेफिनेटली विल टेक टाइम फॉर इंडिया टू इनैक्ट दिस टाइप ऑफ प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ जो ऑफेंसेस एंड जो पेनाल्टीज़ है उनके लिए मैक्सिमम पेनाल्टीज़ अगर कोई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है या कोई अगर ड्राइव कर रहा है ड्रिंक करके या ड्रग्स में है, तो जो पेनाल्टीज़ है पहले 2,000 रुपये थी, अब उसको बढ़ा करके 10,000 रुपीज़ कर दिया गया। तो दिस इज़ डेफिनेटली बिकॉज मैक्सिमम केस ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड दैट लीड टू दैट वाज द मेजर कॉज वाज द पीपल वेर ईदर अल्कोहलिक और द ड्रग्स एडिक्ट। सो वैसे लोग ड्राइव ना करें उसके लिए कोशिश ये की गई है कि 10,000 की पेनल्टी। आई टेल यू इन इंडिया, द कंट्री लाइक इंडिया, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अनटिल एंड अनलेस यू गिव द मॉनेटरी पेनल्टी, जब तक आप उसको ना मॉनेटरी पेनल्टी नहीं लगाते हो, पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। सो आई थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब तक आप उसको फाइन नहीं लगाओगे ही विल नॉट अंडरस्टैंड, यू मेक एनी लॉस। अगर पॉकेट से पैसा खर्च होगा देन ही विल अंडरस्टैंड।
ठीक है. सो दिस वाज माय पर्सनल नोट. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव व्हिच गवर्नमेंट हैज डिड. एंड नो टैक्सिंग एग्रीगेटर्स वुड बी डिफाइनिंग एग्रीगेटर्स एंड द डिजिटल इंटरमीडिएट्स की अगर बात करें तो पैसेंजर्स हैज आल्सो कनेक्टेड जो ड्राइवर जो ट्रांसपोर्ट जो टैक्सी सर्विसेज है दे नीड टू इशूड अ लाइसेंस. अगर किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो फर्दर दे नीड टू कंप्लायंस विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. जैसे अगर आप में से जो भी लोग जो लिव इन द सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली एंड अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कि वी मस्ट बी अवेयर कि उबर और ओला जैसे जो सर्विसेज है तो दे आर कंप्लाइंग, दे आर ओनली, उनका जो डेटा है ऑलरेडी सर्वर्स में होता है. तो अगर कई लोग यहाँ से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जैसे टॉकिंग अबाउट दिल्ली, तो दिल्ली में एनसीआर परमिटेड है. अगर कोई दूसरे स्टेट में लाओ दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू, दे कैन जम्प टू एनी अदर स्टेट, बट अगेन वहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, राइट. तो दिस वाज द पार्ट ऑफ द टैक्सी एग्रीगेटर्स. अगर मैं बात करूं कि कंसर्न क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है दैट रिलेट टू द जो कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन है, उसमें काफ़ी कंसर्न रेज की गई. सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता दूं. और डेफिनेटली एक अटेंशन चाहिए कि जो क्वांटम ऑफ कंपनसेशन है उसको कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है. एक केस था अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2010 में. तो इसमें जो जिनकी डेथ हुई थी वो एक होम मेकर थे. तो जो एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल है उन्होंने जो कंपनसेशन अमाउंट था उसको 6 लाख से कम करके 2,60,000 रुपये कर दिया, ठीक है, 2,60,000 रुपीज़. सो दिस अगेन स्टार्टेड, उन्होंने बताया कि जो डिसीज्ड है सी वॉज एन अनएम्प्लॉयड. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इस तरह के डिसीजन नहीं दे सकते हैं, बिकॉज यू नीड टू डिफाइन हु आर द होम मेकर एंड हु आर द हाउस होल्डर्स, ठीक है. तो अगेन दिस इज द कंट्रोवर्सी विच डेफिनेटली विल बी टेकन केयर इन दिस बिल, और इफ नॉट टेकन विल बी टेकन केयर इन द फर्दर अमेंडमेंट्स, ओके. और जो एक जयप्रकाश वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की एक और केसेज है, इसमें इनएडिक्वेट एड्रेस ऑफ द अमेंडमेंट वर्जन जो है ना, मतलब बेसिकली इसमें बात ये की, मैं आगे बताऊंगा आपको कि जो अमाउंट है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके दो, लेकिन द कंपनसेशन अमाउंट शुड नॉट बी कैलकुलेटेड, शुड नॉट बी डिमिनिश्ड, उसको कम नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, ओके. एंड डेफिनेटली तो जो व्हीकल यूजर्स है डू नॉट हैव द पासेस टू द इमरजेंसी एम्बुलेंस, ठीक है, हु आर लाइबल टू द, जो अगर ऐसे लोग जो एम्बुलेंस को अगर पास नहीं दे रहे हैं, अगर कोई एम्बुलेंस, तो दे विल बी ऑल्सो punished with the fines, okay. So these are the some of the concern as far as the compensation and calculation is concerned. Now talking about the delays in settlement, तो अभी रिसेंट टाइम में डिलेज इन सेटलमेंट में देखा गया है कि ऑलरेडी जो क्लेमेंट्स हैं उनकी जो सेटलमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रही है. तो डेफिनेटली द एक्ट ऑल्सो हाईलाइट कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक न्यू एक्ट बने, जो नई एक्ट है वो ऐसी होनी चाहिए, बल्कि इस एक्ट में भी ये बातें नहीं कही गई है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी रेमेडी टू द प्रोसीजर डिले. जो प्रोसीजर डिले है जो ट्राइब्यूनल के साइड से है या जो क्लेम सेटलमेंट के साइड से है, वो भी बहुत ज़्यादा इस बिल में इसकी बातें नहीं की गई है. तो दिस अगेन कैन बी अ लूप होल इन दिस बिल. एंड द एब्सेंस इन द बिल सेफगार्ड और जो कंपनसेशन मैकेनिज्म है वो अलाउ करता है कि जो भी जो एजेंट्स है, जो टॉट्स है, जो ठगते हैं किसी चीज़ों को, ठीक है, बेसिकली दे आर मेनी इंटरमीडियरीज. सो नो दे डेफिनेटली डू नॉट लेट द पीपल जिसकी वो कंपनसेशन है, या तो उसके सही संबंधी बता करके या उसके किसी भी कारण से दे यूज टू टेक द मनी अवे. तो अगेन दिस इज द प्रॉब्लम, दैट इज वाई गवर्नमेंट इज डूइंग देयर हार्ट कि जो भी कंपनसेटरी दिया जाएगा जो गवर्नमेंट की तरफ से अमाउंट, दैट विल बी अ कैशलेस एंड डायरेक्टली बेनिफिटेड टू द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरीज, ठीक है. नाउ सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश में जो केस है उसमें सजेस्ट किया था कि जो पेमेंट है दैट वुड बी डन इन द मंथली डिसबर्समेंट. आप अगर ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकते हैं तो आप एक मंथली डिसबर्समेंट करें फॉर अ स्मॉलर अमाउंट, एक छोटा अमाउंट हो जो कि लंबे समय तक हो, ठीक है, एंड नॉट इन द लमसम अमाउंट, ठीक है. सो दिस वाज द जजमेंट ऑन द जयप्रकाश केस इन द सुप्रीम कोर्ट. सो दिस वाज अ डिलेज इन द सेटलमेंट रिलेटेड इश्यूज. दिस कैन बी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हो. Now we look into the way forward, what would be the important way forward as such. So definitely zero tolerance होनी चाहिए. जो लोग those who violate the law which is being enacted, for the violation there should be zero tolerance and there should be definitely fine and other penalty which is appropriate for them. और ज़रूरत ये भी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है डेफिनेटली एक इंसेंटिटाइज करे कि हाउ टू प्रोवाइड अ क्लीन, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल सर्विस टू ऑल यूजर्स. ज़रूरत है जितने नागरिक हैं उनको सारी सर्विसेज अच्छे से मुहैया कराया जाए, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए खासा ध्यान रखा जाए. स्टेट जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, जो STCs हैं, जितने भी हमारे स्टेट बसेज हैं, चाहे वो
हर स्टेट की अपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन होती है, उनको ज़रूरत है कि वो कैसे मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाएं, ठीक है। और अभी जैसे बात चल रही है इलेक्ट्रिक बसेस की, इको फ्रेंडली बसेस की, तो हाउ देयर कुड बी अ लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट ट्रैवलर, बेसिकली एयर कंडीशन ट्रैवल भी हो, तो उसकी भी कोशिश की जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो ट्रैवल ऑन द स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, बसेस की वो में ट्रैवल करें, और अपने जो पर्सनल व्हीकल है पीपल कैन रिड्यूस दिस अल्टिल अनलेस यू प्रोवाइड मॉडर्न मैनेजमेंट एंड मॉडर्न एमिनिटीज, पीपल विल बी कमिंग टू यू, ठीक है। सो दे विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर द पर्सनल व्हीकल। तो सरकार को इस चीज़ में भी काफ़ी देखने की जरूरत है कि कैसे हम अपने स्टेट मशीनरी को भी, जो मशीनरी है उसको कैसे उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, उस पर कैसे सुधार ला सकते हैं। So this was on the part of this particular editorial. So again, this is important one. As I told you, it can be important for you mains examination, and some of the important point that were there for the prelims examination, वो भी मैंने आपको साथ के साथ discuss कर दिया। Now talking about the some important questions for the day that would be relevant for you. So the first question is with reference to आत्म सभा, consider the following statement। और मैं बता रहा हूँ अभी तक UPSC ने आत्म सभा पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, and I find this to be very important। इट कैन एनी टाइम बी आस्क्ड बाय यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, प्रीलिम्स में किसी भी टाइम भी पूछ सकते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि इट कैंपेन अगेंस्ट द आइडेंटिटी कास्ट रिजिडिटीज मीनिंगलेस रिचुअल एंड सोशल स्किल, और इट वाज सेट अप एट वर्धा इन महाराष्ट्र। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैसा कि मैंने पिछले एडिटोरियल में भी क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं किया है, और आप में से कई लोगों ने कमेंट किया है, एंड आई पर्सनली फील कि अगर मैं आपको इस टाइम पे साथ के साथ डिस्कस नहीं करूं तो आपकी पार्टिसिपेटरी ज़्यादा होगी एंड यू विल लर्न मोर। साथ के साथ आंसर बताने से क्या होता है कि यू गेट सम कन्फ्यूज एज वेल। तो अगर आप चाहते हो कि बाद में मैं इस आंसर को डिस्कस करूँ तो वो भी मुझे बताना, बट आई वॉन्ट कि आप मुझे डिस्क्रिप्शन में इसके आई मीन बेसिकली आप कमेंट करके मुझे इसके आंसर बताएं। जिनको आंसर देखना है तो दे कैन रेफर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो प्लीज टेल मी विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ए, बी, सी और डी। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 2, विथ रिगार्ड्स टू छाबहार पोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो छाबहार पोर्ट लाइज इन द गल्फ ऑफ बर्बेरा, और छाबा पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द मरकन कोस्ट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें अगेन 1, 2 या सी बोथ 1 and 2 या डी नीदर ऑफ देम। सो यू हैव टू टेल मी आंसर, एंड दोज ऑफ यू अगर जिनको इस टॉपिक के बारे में फेमिलियरिटी नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोज ऑफ यू गिव अ ट्राई, डू नॉट हेजिटेट टू पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा तो वी विल बी रिवाइजिंग, डेफिनेटली यू विल बी रिवाइजिंग एंड यू विल बी लर्निंग द थिंग्स। सो डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट द आंसर। ओके, so for time being I'm signing off, and I sincerely thank you so much for listening this video. Do not forget to like, subscribe the channel, and I sincerely thank, and keep your work hard, do your all the best, keep rocking. Thank you.